हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आई विश ऑलवेज फॉर योर वेलनेस एंड फॉर योर वेल बीइंग। सो इस कठिनाई के समय में, कठिनाई की घड़ी में, कोविड के समय में मैं सदैव प्रार्थना करता हूं कि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा फोरकास्टिंग। आई एम राइटिंग ओवर द स्क्रीन। द टॉपिक विल बी forecasting and the activity will be to forecast। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ही अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर इस वक्त है, पहले भी रहा करती थी और अनडाउटेडली आगे भी रहेगी। अब हमारा इसमें काम क्या रहेगा, हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरीके से अपने प्लान्स बनाएं, अपने प्रिडिक्शंस हम लोग रखें कि ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और ना ही हमारा लॉस ज़्यादा हो। ठीक है, प्रॉफिट ही हो अगर हो तो ये सब जो टेक्निक होती हैं which will predict the future of the organization, the future market condition, the future revenue generation. These all comes under the activity that is forecasting. So forecasting is not only done by the top management, it is also the duty of all the components, all the employees of an organization to take part in the process of forecasting to meet the future competition, the future requirements. Okay, so we will discuss it about and we will start. But before starting, if you have not subscribed my channel till yet, then please subscribe it. And if you like the videos from me, then please do share it with your friends and family and the needy ones. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप यहाँ पहली बार आए तो आप इस सब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशंस आ जाएं। और अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ नॉलेज हम दूसरों से शेयर कर सकते हैं तो आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, इसमें कोई भी मोनोपोली वाले कोई स्टेटमेंट नहीं है और मैं किसी भी तरीके का कोई कॉपीराइट इसके अंदर नहीं रखता हूं। आप मेरे स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, मेरे वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, मेरे आइडियाज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोरकास्टिंग की। तो एज वी नो दैट in the present scenario it is very difficult to predict what will be in the future regarding the market. Will the market goes up or will it go down? No one can predict it. No one can predict what will be the business condition, market share, profit. No one can predict it that what will be the future of an organization, whether the future will be like this or the future will be like this. Means कोई ये नहीं बता सकता है कि जो भविष्य में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा वो क्या होगा। क्या हमारा मार्केट शेयर और प्रॉफिट बढ़ेगा या हमारा मार्केट शेयर और प्रॉफिट वक्त के साथ में कम हो जाएगा। द मार्केट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन। बट अगर ऐसे ही सोचेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हमको करना क्या होगा,
हमको करना ये होगा कि कुछ प्लान करना होगा. We have to plan something. What we have to plan? We have to plan our investment. We have to plan for our revenue generation. We have to plan for the resources procurement, and for this we have to go through the forecasting. So forecasting refers to the practice of predicting that what will happen in the future by taking into consideration the events happened in the past and those which are happening in the present time. ओके, फोरकास्टिंग कैसे होती है? हम इसके अंदर एक तो पास्ट जो इवेंट होते हैं उनको कंसीडर करते हैं, साथ ही जो प्रेजेंट में जो इवेंट्स चल रहे हैं उनको कंसीडर करते हैं, तब जाके हम फोरकास्ट करते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा और हमें क्या करना होगा. ठीक है, so these are the very important elements of the forecasting. You can see these elements: the past data, the present data and the future data. Okay, अब हमको करना क्या होगा इसके अंदर? that we will collect the past data, the past results and the present data and the present results to forecast or to determine the upcoming condition of the market, isn't it? We have to prepare some charts like bar charts based on the data of past and the future. Oh, sorry, past and the present. In forecasting, we have to do budgeting. What is budgeting? Budgeting is to allocate the funds for future activities on the basis of past and present सिनेरियो डेटा. बजटिंग के दौरान हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में हमको किन एक्टिविटीज में कितना बजट एलोकेट करना है, कितना फंड एलोकेट करना है, ये हम डिसाइड करते हैं. और ये डिसाइड कैसे करेंगे कि उन एक्टिविटीज का हम पास्ट रिकॉर्ड भी देखेंगे और प्रेजेंट रिकॉर्ड भी देखेंगे. इस बेसिस पर हम फोरकास्टिंग करेंगे बजटिंग के लिए. ठीक है, तो बजटिंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर ड्यूरिंग फोरकास्टिंग कि मार्केटिंग में हमको कितना बजट रखना है, रिसोर्सेज एलोकेशन में हमको कितना बजट रखना है, मेंटेनेंस के लिए हमको कितना बजट रखना है. ठीक है ना, फिर हमको ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल कराने के लिए कितना बजट रखना है. काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं इसके अंदर. तो इस तरीके से हम बजट को एलोकेट करते हैं. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोरकास्टिंग में. ठीक है, क्लियर है? अब ये जो बजटिंग होती है, ये बजटिंग तो हमारी होती है फॉर एन इंटायर ईयर. बजटिंग इज डन फॉर
entire year. Okay, and forecasting is for 1 month, 3 month, that is quarterly. Okay, or for a particular सीजन. सीजनेबल फोरकास्टिंग भी हो सकती है, और जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तभी हमको ये पता लगता है कि हमें किस हेड में कितना बजट एलोकेट करना है. ठीक है. अब फोरकास्टिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे फोरकास्टिंग के मेथड होते हैं. तो मेथड ऑफ फोरकास्टिंग में क्या आता है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मेथड में क्या आता है, जो फर्स्ट मेथड होगा दैट इज क्वालिटेटिव मेथड. अब क्वालिटेटिव मेथड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ज्यादातर किसी तरीके का न्यूमेरल डेटा नहीं होता. इसके अंदर न्यूमेरल डेटा नहीं होता. जो फोरकास्टिंग टीम होती है, ये लोग बैठ के सोचते हैं, ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, ये लोग पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन से डेटा कलेक्ट करते हैं. कुछ डेटा एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है, कुछ डेटा ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी होता है. ठीक है ना. इस तरीके से डेटा कलेक्ट करके और फिर ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमको क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या होना चाहिए. ठीक है. तो ये क्वालिटेटिव मेथड में एक्टिविटीज होती हैं. तो क्वालिटेटिव मेथड के अंदर क्या होता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं फोरकास्टिंग के, वो ज़्यादातर जो फोरकास्टर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस पर, उनके इमोशंस पर बेस्ड होते हैं, उनके इंट्यूशंस पर बेस्ड होते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से इस तरीके की फोरकास्टिंग होती है, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग. इसमें क्या होता है कि किसी गेम का हमको आउटकम पता करना है. अब हम गेम के आउटकम के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं. ठीक है. अब फोरकास्टिंग कैसे होगी इसके अंदर ऐसे फोरकास्टिंग हो जाएगी कि हम देखेंगे कि कोई एक प्लेयर है. ठीक है. वो प्लेयर पिछले कंप्लीट सीरीज में काफी अच्छा खेला है. दिस प्लेयर प्लेड वेल फॉर द इंटायर सीरीज of the game. So the forecaster will predict that this player will definitely play well in the finale. But the forecasting by this method may be inaccurate. इस मेथड से की गई फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी इनएक्यूरेट हो सकती है. इसके अंदर पूरे चांसेस है क्योंकि इसके अंदर किसी तरीके की डेटा एनालिसिस नहीं है, इसके अंदर किसी तरीके का कैलकुलेशन नहीं है. तो ये इनएक्यूरेट हो सकती है क्वालिटेटिव मेथड जो है फोरकास्टिंग का. ठीक है. सेकंड जो टेक्निक या सेकंड जो मेथड आता है, वो मेथड होता है फोरकास्टिंग का क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ सॉरी सेकंड जो मेथड होगा दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग.
ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि कभी भी फोरकास्टर्स के इंट्यूशंस और उसके एक्सपीरियंस और उनकी ओपिनियन के बेस पर कभी भी रिजल्ट नहीं निकाला जाता। इन दिस टेक्निक द फोरकास्टर्स एनालाइज the numeral data, use some calculation, and then interpret the future business condition on the basis of results obtained. This is what the quantitative method of forecasting is. ठीक है, समझ में आया? इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें क्या रहता है कि हम पास्ट से कुछ न्यूमेरल डेटा लेते हैं, हम उनका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद में फिर एक रिजल्ट हमारे पास में कुछ निकल के आता है, एंड देन इस रिजल्ट को फिर इंटरप्रेट किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन से ये पता किया जाता है कि जो कमिंग फ्यूचरिस्टिक कंडीशन क्या होंगी मार्केट की। दिस इज द क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। So I think these two techniques, these two methods of forecasting are easily understandable to all. ठीक है, so all you are understand the two methods. Then now we will discuss the features of forecasting. Features of forecasting. It involves the future events. Forecasting is always done for the future. आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे उस समय बिजनेस के नेचर होगा, कैसे उस समय बिजनेस कंडीशन होगी, कैसे उस समय मार्केट कंडीशन होगी। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों के लिए फोरकास्टिंग करते हैं, और इसमें फ्यूचर इवेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। द फोरकास्टिंग इज टोटली डिपेंडेंट on the data which are extracted from the past and the present events. I'm sorry, this is not future, this is present events. Okay, the third one is forecasting is always done by using forecasting techniques, that is qualitative techniques and quantitative techniques. Is it okay to all? Okay, if you have any query, then you just write the same in the comment box, and I will definitely read it and will revert you back either via phone, WhatsApp,
email, or the comment section itself. Okay. So for this time, this is all about the forecasting. You may go through the Google, you may go through some textbooks, okay, some literature to study more about the forecasting. The next, we are going to discuss about the market analysis. Marketing analysis. You know what is the market in actual? We all very often use this term market around 5 to 10 times or sometimes 10 to 20 times in a day in our daily life. But what is the market? Market is the place where some commodities are available and some people are also available who comes to the place where the commodities are available and do some transactions, some financial transactions in actual. They give some money and take away some article with them. मार्केट वो जगह है जहां पर दो चीजें अनिवार्य रूप से उपस्थित होती हैं, अवेलेबल होती हैं। वो है कुछ उपभोग करने के लायक वस्तु और उसका उपभोग करने के लिए कोई उपभोक्ता। ये दो लोग जब अवेलेबल होते हैं किसी जगह पर, दो चीजें जब अवेलेबल होती हैं, जैसे एक तो आपका कोई मटेरियल हो गया और दूसरा उस मटेरियल को खरीदने वाला कोई खरीदार हो गया। जिस जगह पर ये दोनों अवेलेबल होंगे उस जगह को हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। ठीक है, वो होता है बाजार। अब जो खरीदार होता है उसके द्वारा कुछ ट्रांजैक्शन किया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है किसी और व्यक्ति को। वो व्यक्ति पैसा लेकर, जो कि सेलर होता है, ठीक है, वो पैसा लेकर और पर्टिकुलर आइटम कस्टमर को दे देता है। ये ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो मार्केट प्लेस पर हमेशा आपको ट्रांजैक्शन मिलेगा, होता हुआ दिखेगा, कस्टमर दिखेगा और एक सेलर दिखेगा जो कुछ आर्टिकल्स लेके बैठा होगा बेचने के लिए। इसे कहते हैं अपन मार्केट। ठीक है, मींस मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ अवश्य दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट की एनालिसिस क्या होती है? क्या होता है? इफ आई वांट टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट, either I want to continue my existing product for the future market, or I want to manufacture or produce some new product for the customers. So for this, I have to do some research from the past data and the present data. I will complete my research work and find out that what was the sale of a particular item, existing item in the past, what was the revenue generation, what was the customer feedback, and what today condition, what is the requirement of the customer. If we have some new requirements from the customer side,
then we will not continue the existing product, we will go for the new product, or we will add some features in our existing product and relaunch it in the consumer market in order to continue our sale for our existing customer and also to attract the new ones. This is the main benefit and important benefit of the market analysis. Sometimes the data comes from the market after interpretation will show that some companies, some competitors of our company, of our product will go to get them in the near future. Okay, then we have to decide that time that if some market is going to be shut down in the future, then we will, or how will we attract the customer from that company to our company. That will be our target market for promotion. That will be our target market to sell, because already we have our existing customer, existing market, and we have to expand our business. We have to expand our brand, our name, okay, to generate more revenue, to generate more profit. We have to target the new customer and we have to promote our product, our company, our brand name to those customers whose existing company is going to get shut in the future. जैसे क्या हुआ कि जब मार्केट में नोकिया के फोन्स, मोबाइल फोन चला करते थे, तो हम देखते थे कि 90 to 95% मार्केट शेयर जो है वो नोकिया का ही है. अब क्या हुआ, क्योंकि नोकिया ने धीरे धीरे जो है अपना मार्केट शेयर खो दिया. वो क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने फोन्स को अपग्रेड नहीं किया. तो इस दौरान क्या हुआ कि जो दूसरी कंपनी थी, जैसे एमआई थी या सैमसंग थी, इन कंपनीज ने देखा क्या नोकिया का मार्केट शेयर कम हो रहा है. ठीक है, क्योंकि नोकिया इनका कॉम्पिटिटर है, सैमसंग का, एमआई का, रेडमी का, सबका. तो इन्होंने देखा कि नोकिया जो कंपनी है, नोकिया का जो मार्केट शेयर वो धीरे धीरे, और जो कस्टमर बेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब जो मार्केट इनको मिला, मींस मार्केट शेयर और कस्टमर बेस के रिलेशन में अगर बात करें, तो अब सैमसंग को जो नया कस्टमर बेस मिला, ये कस्टमर बेस किसका था? ये एक्चुअली नोकिया का था. लोगों ने नोकिया को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उसको परचेज करना छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास में एंड्रॉयड नहीं था, एप्स यूज नहीं कर पाते थे, सिम्बियन और जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया के में. तो क्या करते थे कि अब इनके पास में जो कस्टमर थे नया, उन कस्टमर के लिए इन्होंने नए नए ऑफर्स लाना स्टार्ट किया, और यहाँ पर इन्होंने प्रमोशन स्ट्रेटेजी को बढ़ाया और नई स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया. और इस तरीके से सैमसंग या एमआई या वीवो या ओप्पो, ओके, इन लोगों ने जो नोकिया के कस्टमर बेस था उसको एक्वायर कर लिया, और नोकिया पूरी तरीके से शट डाउन हो गया मार्केट से, ऑब्सोलीट भी हो गया. ठीक है, अब जब नोकिया वापस आया है, तो नोकिया को वापस आने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन ये स्ट्रगल किसी काम का नहीं है, क्योंकि सैमसंग और एमआई, ये लोग दूसरी जो कंपनी है, वो कंपनी अपनी ऑलरेडी नोकिया के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी हैं, अपना कस्टमर्स बना चुकी हैं. तो ये मार्केट एनालिसिस होती है. हम मार्केट एनालिसिस में कॉम्पिटिटर्स की कंडीशन, कॉम्पिटिटर्स की जो बिजनेस कंडीशन है, उसको भी कंसीडर करके चलते हैं, चाहे वो हमसे ऊपर हो या हमसे नीचे हो या हमारे बराबर में बिजनेस कर रहा हो. ठीक है, तो ये होता है मार्केट एनालिसिस में. इस तरीके से हम काम करते हैं. मार्केट एनालिसिस में
जो डेटा होता है उसको जो है ये एक्चुअली क्या होता है, ये न्यूमेरिक डेटा बेस्ड होती है मार्केट एनालिसिस। जो हमारी मार्केट एनालिसिस है, ओके, इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा। क्योंकि भाई हमको प्रॉफिट पता करना है, हमको सेल्स पता करना है, ठीक है, हमको लॉस पता करना है, हमको इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। दीज ऑल आर इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो मार्केट एनालिसिस एक मैथमेटिकल फोरकास्टिंग टेक्निक होती है और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर उनको प्रोसेस करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं कि आगे आने वाले मार्केट की कंडीशन क्या होगी, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी या हमको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रखना है या नहीं, या हमको कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, this is all about the market analysis and forecasting technique. So today I'm going to end my video right here, and I'm again requesting that if you find even a word, even a sentence, a single sentence, a single useful sentence in my videos, then do share it with the other ones, because sometimes it may be possible that the content of the video might not be useful or completely useful for you, but it will definitely be useful for someone else. Okay, so let the video flow in the market, let the video get shared more and more in the market, so that the needy person will definitely get some knowledge, will definitely get some ideas from my video. I always speak in very slow and the low pace, because some of my clients, some of my friends, some of my viewers asked me to speak in low pace and in slow speed. Okay, that's why I am speaking slowly. Okay, so thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरे वीडियो के लिए टाइम निकाला, आपने इससे नॉलेज गेन की। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो मैं बनाऊं, ओके, तो मैं उस टॉपिक को भी कंसीडर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। थैंक यू।